الرحيم والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، لگاتے ہیں دل وہ اس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے۔ قابل احترام صدر اجلاس، سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و برکات، نیز نظام وصیت کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ، کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات میں بھی اور دن میں بھی، یعنی چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، سرًّا وعلانیہ، بعض دفعہ وہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ دکھا کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی اور فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ خوف کریں گے اور نہ وہ آئندہ سے غمگین ہوں گے۔ اللہ کا مومن بندہ متقی، جس کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بھی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نفس کا شیطان مسلمان بن گیا ہے۔ تو شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، ہرگز نہ دے، تیرا مال ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تجھ کو غربت سے ڈراتا ہے کہ اگر تو چندہ دے دے گا، مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو تو بھوکا رہے گا، تو فقیر بن جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، ادھر تو اللہ کے راستے میں دینے سے شیطان منع کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ برائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اگر مال و دولت ضرور زیادہ ہو جائے تو انسان برائی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ان مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مَنَّ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اللہ کے لیے اپنے مال میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کے قرض کے طور پر دے دے، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں اضافہ کرے گا، برکتیں عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، وہ کیا سمجھتا ہے کہ خدا اس کو روزی نہیں دے رہا ہے؟ ہاں، خدا ہی روزی دیتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اس کی روزی کو بڑھا دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو اس کی روزی کو وہ کھینچ لے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مومن، ان مومنوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، اس بوٹی کی طرح ہے، اس پودے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ بونے کے نتیجے میں 700 دانے بن جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اس سے بھی کہیں بڑھ کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دھان کا بیج اگر بوتے ہیں 700 کے، آج کل تو اور بھی زیادہ اس سے پھل نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں
जो खराबी में भी खर्च करते हैं और तंदुरुस्ती में भी खर्च करते हैं, कुछ नहीं है उनके पास, वो गरीब हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को डराते हुए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, मालो दौलत को जमा करके रखोगे, सोना चांदी जमा करके रखोगे, उसका ज़कात नहीं दोगे, फरमाया अल्लज़ीना यक़ूलूना ज़हबा वल फिद्दता, कि वो जो सोना और चांदी इकट्ठे करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दे। खुशखबरी देते हुए उन मोमिनों को जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, के खुशखबरी दे रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मोमिनों को जिन्होंने अपना माल और अपने नफ्स को अल्लाह के लिए खर्च कर दिया, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उनके लिए जन्नत है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंसान रोजगार करता है, कितना करता है, कितना कमाता है, कितना रखता है छुपा के, वो सब अल्लाह को मालूम है। फरमाया वल्लाहु आलमु बिमा यूउन, जो तुम छुपाते हो अल्लाह जानता है। सेक्रेटरी माल से छुपाते हो, जितना कितना लिखाते हो तुम अपना चंदा, वो सब अल्लाह जानता है। वल्लाहु आलमु बिमा यूउन, अल्लाह ताला जानता है जो तुम छुपा रहे हो। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यहाँ पर भी कहा कि उन लोगों को जो अपना माल छुपाते हैं, असल आमद नहीं बताते, असल बजट नहीं बताते, बाशरा चंदा नहीं लिखाते, उनके लिए फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए भी सुना दे दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला ने उनके लिए रखा हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन सोना और चांदी पिघलाया जाएगा और उन जहन्नमियों को दाग लगाया जाएगा उसी में से, इसलिए कि उन्होंने माल और दौलत जमा किया लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया। ला हसदा इल्ला फी इस्नैन, के रश्क नहीं करना, लेकिन दो बातों का जरूर करना। हसद करना, हिर्स करना मना है, लेकिन दो बातें हैं जिस पर इंसान हसद कर सकता है, वो उसके लिए फख्र की बात है और सवाब है। फरमाया वो कौन सी दो बातें हैं? रजुलुन अताहुल्लाहु मालन, एक ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा है, फसल्लतहु अला हरकतिही फिल हक़्क़ि, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। दूसरा वो रजुलुन अताहुल्लाहु हिकमतन, जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता किया है, फहुवा यज़्ज़ी बिहा, वो उस हिकमत के जरिया से लोगों के दरमियान में सुलह सफाई करता है, वह युअल्लिमुहा, दूसरों को सिखाता है। ये दो बातें अगर किसी के अंदर हैं तो उसका हसद यानी रश करना चाहिए कि काश के मेरे पास भी मालो दौलत होता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, काश के मेरे पास भी हिकमत होती, मैं उससे बड़ी नौ इंसान की खिदमत करता। फिर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़कात, के ज़कात के जरिए से तुम अपने माल की हिफाजत कर लो, वरना तुम्हारे माल और दौलत की कोई गारंटी नहीं। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, उसके देने के कई रास्ते हैं और उसके लेने के भी कई रास्ते हैं। खुदा जब देता है कई रास्ते से देता है, मिन हैसु ला यहतसिब, फरमाया कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि कहां से कैसे पैसा आ जाता है, लेकिन अगर वो लेना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो उसको ले जाता है। वो देना जानता है, वो लेना जानता है, और बाद दफा जब लेता है बिल्कुल सब कुछ लेकर चला जाता है और तुम भिखारी बन जाते हो। फरमाया हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तकुन नारा वला बिशिक्के तमरा, कि तुम आग से बचो, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में देकर। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो खजूर का एक टुकड़ा तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो, अगर तुम जहन्नम की आग से निजात पाना चाहते हो।
हर दिन सुबह होती है, शाम होती है। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दिन जब सुबह हो तो दो फरिश्ते आसमान से नाज़िल होते हैं। एक कहता है कि अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन, कि अल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में देता है तो उसके माल और दौलत में बरकत दे, फरिश्ता दुआ करता है। और दूसरा जो फरिश्ता है वो कहता है कि अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तरफन, कि अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं देता उसके माल और दौलत को तबाह और बर्बाद कर दे। फिर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सखियो करीबुम मिनल्लाह, कि जो अल्लाह के रास्ते में देने वाला होता है, सखी होता है, वो अल्लाह के करीब होता है। करीबुम मिनन्नास से वो लोगों के भी करीब होता है, लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं, खुदा भी मोहब्बत करता है, लोग भी मोहब्बत करते हैं। करीबुम मिनल जन्नत से वो जन्नत के करीब होता है। बईदुम मिनन नार वो आग से, जहन्नम की आग से दूर होता है। वो बकील, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता बकील है, कंजूस है। बईदुम मिनल्लाह, अल्लाह से दूर, बईदुम मिनन्नास से, लोगों से दूर, बईदुम मिनल जन्नत, जन्नत से दूर, करीबुम मिनन नार, जहन्नम के करीब। फिर एक ऐसा आदमी जो इबादत तो अल्लाह की करता है लेकिन मालो दौलत नहीं देता अल्लाह के रास्ते। बहुत ऐसे होते हैं नमाज पढ़ लेंगे लेकिन अगर उनको चलने के लिए कहा जाए जान निकल जाएगी, चंदा नहीं देंगे। तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज्जाहिलु सखियो हक़्क़ु इलल्लाह मिनल आबिदीन बखील, कि एक अल्लाह की इबादत करने वाला है लेकिन बखील है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। ऐसे इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं, उससे वो जाहिल रहता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। फिर हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कहानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सुनाई और बताया कि मन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले ऐसा हुआ है कि 3 आदमी थे। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कोड़ी था, एक गंजा था और एक अंधा था। 3 आदमी थे। हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह हमारी बीमारी अच्छी हो जाए और हमें मालो दौलत मिल जाए। बहुत गरीब थे। तो एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, कहा कि जाओ उनको खुशखबरी दे दो कि उनकी दुआ कबूल हो गई। फरिश्ता आया उस गंजे के पास, गंजा कहते हैं जिसके सर में बाल ना हो, गंजे के पास आया, कहने लगा कि मैं खुदा का फरिश्ता हूँ, तेरी दुआ कबूल हो गई है, मान क्या मानता है मान। उसने कहा कि भाई मेरे सर में बाल नहीं है जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, कहीं अगर रिश्ते के लिए भेजो तो मना कर देते हैं लड़की वाले। और वाकई आजकल तो लड़की वालों के भाव ही बहुत बढ़ गए, यहाँ मिलती ही नहीं लड़कियां जो हैं, और लड़कियों की कमी भी हो गई है, जहाँ जहाँ मतलब रिश्ता